स्क्रीन सबको विजिबल है गाइस? सबको स्क्रीन Yes, sir. क्लियरली विजिबल है? Good Great. afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Guys, at the starting of our session, हम लोग जब ये preparation start किए थे, probably 6-7 months back, we have started on discussing how to prepare and what should be the strategy for your preparation. And now we are culminating all these stories, and somehow we are going to end all these preparations, and we are approaching towards our destination. So भाई साहब, हम लोग का अभी ये जो गेट का एग्जामिनेशन है कब है? This will be 4th Feb, isn't it? 2024. So if you think that if you calculate from 24th December 2023 to 3rd February, let's say, let's go up to this 3rd Feb 2024. So we have a duration of around, it will be around 42 days, isn't it? Including this 3rd Feb. So मैं 4 फरवरी को डे नहीं ले रहा हूँ. So we are thinking that okay, हमारे पास 42 days का टाइम पीरियड है और टाइम लाइन है हमारे पास. So now we want to know about कि भाई अब हम लोग का प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, क्या स्टोरी बनना चाहिए. So गाइस, आप देखोगे तो ये जो गेट एग्जामिनेशन है, हर साल अपना जो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस आर नॉट चेंजिंग इन सम वे. पूरा का पूरा चेंज नहीं हो रहा है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ बिकॉज़ दिस रिकॉर्डिंग विल बी मेड अवेलेबल फॉर आल्सो. ओके, सो गाइज, हम लोग जो प्रिपरेशन का बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गेट पैटर्न्स. आप देखो लास्ट 4 साल में आप एक चीज देख रहे हो, अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वेटेज बढ़ते जा रहा है, दैट इज माइन वेंटिलेशन. आप देखो पहले के समय में, मतलब 3-4 इयर्स बैक, उसमें वही 2 मार्क 5 मार्क तक आता था. आज 7 मार्क 9 मार्क तक आगे बढ़ चुका है ये टॉपिक. I'm just talking about the ventilation, where we talk about this fans and all that. इसके बारे में जो स्टोरी है, not about the surface hazards, not about the underground hazards. We're not talking about them. This is only about the basics of ventilation, that is fan ventilation, the booster and all that. इसके साथ और एक important चीज हम देख रहे हैं, that this rock mechanics is still holding the first position for the weightages in the topic. And the giant in our preparation should be this mine method and machinery. You see that these two topics are very, very vital for your preparation, because you see that in mine method and machinery around 20 marks altogether, and in rock mechanics around 15 marks altogether you are getting in examination. So पूरा का पूरा examination का 35 marks, पूरा का पूरा examination का 35 marks is now is a great weightage to your gate preparation, isn't it? तो मैं स्टार्टिंग डे से ही आपके साथ इसके बारे में बात किया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दैट स्टोरी, दैट इन लास्ट सम इयर्स वी हैव सीन ए इंक्रीज इन वेटेज ऑफ वेंटिलेशन. इट इज नॉट रिड्यूसिंग, इट इज इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू with time. And with that we are also getting to see that okay, this rock mechanics and mine method machinery are keeping their own weightage still in the examination. तो एग्जामिनेशन में ये दोनों अपना वेटेज बना के रखे हैं और इनका वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो इसका मतलब नहीं कि दूसरा टॉपिक का कोई फायदा नहीं है, बट दीज टू आर वेरी वेरी वाइटल टू अस. ये बेसिक चीज अभी आपका दिमाग में घुसा लो कि मैं ये दो चीज को छोड़ दे रहा हूँ, आई एम लूजिंग 35 मार्क्स. तो अभी कंपटीशन के लिए 70 मार्क्स और 65 मार्क्स मेरे पास बचता है, जो नियरली मुझे क्वालिफाई करने में हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज यू सी दैट क्वालिफाई करने के लिए भी आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, व्हिच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर. आउट ऑफ 65 यू हैव टू स्कोर 30. दैट मींस 50% स्कोर इन एग्जामिनेशन, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, तो अभी हमारा जो बात रहेगा आज का जो स्ट्रैटेजी के बारे में, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सक्सीड इन एग्जामिनेशन for
विद इन दिस 42 days ऑफ प्लानिंग। मतलब ये 42 days का प्लानिंग कैसे करें so that we will be successful in this examination. So let's talk about that. The first important aspect of a student to succeed in examination is about the time management and the consistency. The first important thing is your time management. If you think that कि भाई आज मैं 18 घंटा पढ़ लूंगा, कल मैं 2 घंटा ही पढ़ूंगा, so this doesn't matter. बट आप हर दिन का 8 घंटा 10 घंटा कॉन्सिस्टेंटली दोगे, सो यू विल बी रिच कंपेयर टू दैट गाय हु इज डूइंग 18 hours a day and 3 days you will be in some lazy mood that okay I have studied for 18 hours, so that doesn't matter there. Okay, so आपको चाहिए consistency जो आपको सक्सेस लाने में ही हेल्प करेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है इन लास्ट 42 days कीप योर कॉन्सिस्टेंट इन ट्रैक। मतलब आप चेक करो सच में आप कॉन्सिस्टेंट हो या नहीं। आप 3 घंटा के पढ़ाई में आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा टुवर्ड्स रील्स टुवर्ड्स सोशल मीडिया यू आर गिविंग, देन डेफिनेटली इट इज नॉट योर गेम। ओके, तब फिर आप गेम में नहीं हो, तब आप निकल गए हो, क्योंकि द लास्ट 42 days विल बी वेरी वेरी वाइटल फॉर यू गाइस। तो एक चीज आप याद रखो कि भाई आप हार्ड वर्क करो या आप स्मार्ट वर्क करो, ये दोनों चीज मैटर नहीं करता है सर। मैटर करता है सिर्फ एक ही चीज जो है रिजल्ट। ओके, आप किस प्रकार से आप एग्जाम में कॉपी किए, आप एग्जाम के लिए 18-18 घंटा पढ़े, कोई 10 घंटा पढ़ा, कोई 2 घंटा पढ़ा, कोई स्मार्ट वर्क किया, किसी को क्वेश्चन पता चल गया। आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, द एंड रिजल्ट विल बी व्हाट, द रिजल्ट इटसेल्फ, इजंट इट। गेट में आपका स्कोर नहीं आया तो कोई भी एक्सक्यूज चलेगा नहीं। आप बोलोगे कि नहीं मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ऑल दैट आप बहाने बनाओगे तो एंड में कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज दिस विल नॉट यू फेच अ रिजल्ट। फिर आपको 1 साल ट्राई मारना पड़ेगा, गेट आपको तो छोड़ेगा नहीं ना, तो आपको बोलेगा भाई यू कम अप नेक्स्ट ईयर। ओके, सो भाई साहब आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, कुछ भी करो, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, एंड में आपका रिजल्ट मैटर करता है। घर में आप जितना भी बोल दो कि मम्मी मैं 12 घंटा पढ़ लिया, 100 घंटा पढ़ लिया, बट स्टिल एंड में रिजल्ट नहीं ला पाए तो मम्मी बोलेगी ठीक है मेरा बेटा ही गधा है। ठीक है, द एंड पॉइंट इज ऑलवेज अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, सो भाई साहब आप 10 घंटा 2 घंटा 15 घंटा इट्स ऑन यू, बट एंड में रिजल्ट आना चाहिए। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हाउ मच यू शुड प्रिपेयर और हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब 2 पीस चिकन खाने से पेट भर जाता है, तो कोई आदमी को 10 पीस खाएगा तो भरता नहीं। सो इट वेरीज विद पर्सन टू पर्सन, अपना माइंडसेट, अपना वे ऑफ स्टडिंग सब कुछ अलग है। ओके, सो मैं कुछ अपने से प्लान आउट नहीं करूंगा, मैं आप लोग को एक वे बताऊंगा कि नेक्स्ट 42 डेज आपको क्या करना सर चाहिए, कुछ दिख नहीं रहा एंड तो वी कैमरा। विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो हम 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट द फर्स्ट वन विल बी द टाइम डिवीजन। ओके, द फर्स्ट वन विल बी द टाइम डिवीजन। टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप टाइम डिवीजन। व्हाट इज दैट टाइम डिवीजन? ओके, ऐसा कोई बुक से पढ़ा नहीं रहा हूं, सो इट इज माय ओन strategy towards examination, and I used to follow and give my students that idea towards this preparation. So guys, ये time division क्या है? The time division should be divided for a student. कोई एस्पिरेंट से तो दिन में रात में जिस प्रकार भी पढ़े, जो इट्स ऑन हिम, इट डिपेंड्स ऑन हिम। तो भाई उनको 3 डिवीजन करना है। मान लो आप 12 घंटे में पढ़ रहे हो तो 3 भाग कर लो, आप उसको 10 घंटे में पढ़ रहे हो तो 3 भाग कर लो, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो भी तब भी 3 भाग। ओके, on depends on you guys. Let's say we are studying for 12 hours a day. Okay, because it's an exam time, we need to be consistent. So nearly 12 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा on an average, एक average students के लिए। I'm not talking about the super talented guy. Super talented guy के लिए hardly 4, 5, 6 hours will be enough. Whereas for a average, for a below average student, it should be more preparation. Okay, so भाई साहब time division करोगे तो 4 hours, 4 hours, 4 hours का आप division कर दोगे starting में। ओके, तो ये टाइम डिवीजन आप कर दिए पहले।
Okay, the next one will be the allocation. The next step will be the allocation. Allocation मतलब क्या है? जो टाइम डिवीजन किए हो उस टाइम में क्या क्या टॉपिक को आप लेके पढ़ोगे. ओके, सो दैट शुड बी योर गोल कि भाई मैं 4 घंटा जो दे रहा हूं उसमें मैं मैथ को दिया 2 आवर्स, लेट्स से मैं एप्टी को दिया 2 आवर्स, पहला जो 4 आवर्स है. फिर नेक्स्ट 4 आवर्स जो मैं है उसमें दिया लेट्स से रॉक मैकेनिक्स को दिया 4 आवर्स, एंड द लास्ट 4 आवर्स जो था मैं उसमें लेट्स से माइंड मेथड को टाइम दिया. So it is just an example. It is not the way to do. It depends on you. आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हो. तो भाई सेकंड स्टेप है allocation. The third step is a destination. Okay. लेकिन ये पढ़ के करोगे क्या, मतलब क्या प्लान कर रहे हो नेक्स्ट 7 days 10 days का. सो डेस्टिनेशन के लिए आप क्या करोगे, लेट्स से हमारे पास 40 days है. The 40 days will be divided into two half. One will be the larger share, the other will be the smaller share. ओके जो 30 days रहेगा उसमें आप कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करोगे जो टॉपिक्स आप अच्छे से किए थे, जिसमें PYQs and all that stories to be completed, whereas in last 10 days it will be only about PYQs and basic revisions of notes. Okay. And during the 10 days, what we'll plan, we'll discuss, but for the time being, let's talk about that 30 days. Okay. So what is a time management? It will be in 3 steps. The first step is a time division. The next step is a time allocation. The next step will be your destination. So where you want to go in the next 10 days, 5 days, 2 days. It is known as माइक्रो मैनेजमेंट, नॉट मैक्रो. लार्ज स्केल मैनेजमेंट नहीं है, छोटे छोटे समय को डिवाइड करके हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स को हमको पढ़ना है. तो भाई टाइम डिवीजन में आप टाइम डिवाइड कर लो एंड एलोकेशन में आप एलोकेट कर लो क्या पढ़ना है. लेकिन ये सब जो होगा ये एक्चुअली शुरू होगा कहां से, आपका डेस्टिनेशन से. मतलब आपको गेट एग्जाम देना था इसीलिए तो पढ़ रहे थे ना. सो दे आर इन अ लूप. सो भाई आप पहले डिसाइड करो कि कंप्लीट रिवीजन में आप क्या प्लान आउट किए हो. सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी अबाउट दिस डेस्टिनेशन स्टोरी और 30 days प्लान. तो 30 days प्लान में आप क्या क्या करोगे. द नेक्स्ट 30 days प्लान में आप जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टॉपिक्स आप जो ऑलरेडी कवर्ड एंड रिवाइज कर चुके हो उसको रिविजन करना है, जिसमें आप क्लास नोट्स का क्वेश्चंस हो गया. यू टॉक अबाउट योर PYQs और वर्कबुक का स्टोरीज और नॉट. हम लोग का जो वर्कबुक है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं कि भाई वर्कबुक में बहुत सारा बुक्स हम कलेक्शन किए हैं. इट इज नॉट ओनली अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा एंड इफ यू सी दैट ओके दिस इज आउट ऑफ द स्टोरी देन लीव इट, इट डजंट मैटर देयर बिकॉज बहुत सारे बुक्स से कलेक्शन है. सो कभी कभी ऑथर अपने स्टाइल में एजम्पशन लेके बहुत सारी चीजों को किए हैं और इसको हम धीरे धीरे रिफाइन कर रहे हैं. लास्ट ईयर बहुत सारे गार्बेज था उसको हम वाइप्ड आउट किए थे वहां से, बट इस ईयर भी फिर और रिफाइन करेंगे. सो मैं माफी भी चाहूंगा कि बहुत सारा वर्कबुक में क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एजम्पशंस लेना पड़ेगा आपको. सो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा फॉर प्रिपरेशन, आई एक्सेप्ट इट. बट फॉर द टाइम बिंग आप क्लास नोट्स PYQs वर्कबुक को देखोगे एंड आपका टॉपिक्स जो पढ़ चुके हो ऑलरेडी उसको ज्यादा एफर्ट दोगे एंड यू स्टार्ट विद अ इजी टॉपिक. इजी टॉपिक से ही आप स्टार्ट करोगे. लेट्स से मुझे अच्छा लगता है सिस्टम इंजीनियरिंग, सो आई विल स्टार्ट विद अ रिवीजन फ्रॉम सिस्टम्स. मुझे लेकिन डिफिकल्ट लगता है रॉक मैकेनिक्स एंड आई विल स्टार्ट विद रॉक मैकेनिक्स, देन एवरीथिंग विल बी ए स्पॉइल. ओके, सो आप देखो, सोचो आप मान लो एक बाइक खरीदे हो एंड डे 1 में आप हाईवे में चले गए तो व्हाट विल हैपन, यू विल मेट टू एक्सीडेंट एंड एंड में आपको लगेगा और बाइक नहीं चलाऊंगा भाई, साइकिल मेरे लिए ठीक है. So this is how a person feels very disheartened when he faces any difficulty. आप देखो क्रिकेट में पहले के समय में रिकी पॉन्टिंग को जब कोई नया बॉलर मिलता था वो भर के उसको धोता था.
क्यों? क्योंकि वो जानता है कि नया बॉलर को स्टार्टिंग से ही इतना पीटेगा, तब एंड में क्या होगा कि वो बॉलर का मन ही नहीं करेगा और इधर उधर फेंकेगा और पीटू। So this is how the batsman used to keep the moral down of the new ballers. So ये होता था उस समय में, और रिकी पॉन्टिंग तब रिटायर कर गए हैं. So it's a strategy. अब देखो, आप खुद से अभी डिफिकल्ट टॉपिक में लेके चलोगे, then it will be difficult for you guys. Okay, so always start with a easy story. जहां पर प्रेम से बहुत सारा काम हो जाएगा, वहां पर फिर खून खराबा क्यों? Isn't it? तो भाई पहले इजी टॉपिक से शुरू करो, उसके बाद धीरे 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 डिफिकल्ट लेवल को बढ़ाते जाओगे. अभी बात आता है, बहुत सारा स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर मैं मैथमेटिक्स का कुछ चीज को छोड़ गया हूँ, कुछ चीज बोलते हैं कि सर मैं रॉक मैकेनिक्स का कुछ पार्ट छोड़ गया हूँ. इट्स ओके. ओके, हमको 4 साल का पढ़ाई में बहुत सारा चीज, कुछ कुछ चीजें छूट सकता है, लेकिन जो पढ़ाऊं क्या उसको अच्छे से पढ़ाऊं, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, तो भाई आप ये मत सोचो मैं ये जो 2 टॉपिक छोड़ दिया, उस टॉपिक के कारण मैं गेट में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बात ही नहीं. बात है कि आप जितना पढ़े हो क्या उसको अच्छे से पढ़े हो, दैट मैटर्स ओनली, एंड द रिजल्ट ऑल्सो मैटर्स. तो भाई साहब आप टेंशन मत लो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लेफ्ट कैलकुलस एंड यू सो दैट ओके वेक्टर कैलकुलस मेरे से बनता नहीं, लीव इट. ओके, यू लेफ्ट इट. लेट्स से you have not studied mechanics. Let's say I'm just giving an assumption there. So I don't know, but if you feel uncomfortable with mechanics, you left it and you are thinking that sir मेरे तो गेट नहीं हो पाएगा, मैं तो मैकेनिक्स पढ़ा नहीं. लेकिन मैकेनिक्स में 4-5 मार्क आता है, सो इफ यू हैव नॉट डन इट इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट द अदर 95 मार्क्स? सो हैव यू डन इट? सो आस्क योरसेल्फ, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. आप खुद को पूछो भाई. मैं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि आप मैं बोलूंगा आपको कि ask a question to yourself, or ask a question, or think about व्हाट यू आर डूइंग. आप क्या कर रहे हो, पहले आप खुद को पूछो कि आप सही कर रहे हो, तो मतलब आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हो तो. क्योंकि देखो मैं पर्सनली पूछूंगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर मैं कर रहा हूँ सर, मेरे से हो जाएगा एंड मैं कर लूंगा. लेकिन आप ऐसा नहीं हो पाता ना, बंदे क्या सोचते हैं कि नहीं मैं मेरे से नहीं बन रहा है एंड ऑल दैट. तो ये पहले अपने आप को पूछो कि आप मतलब सही से टॉपिक्स को देख रहे हो या नहीं. ओके, तो उसके बाद आप डिसीजन लेना क्या करना है. नेक्स्ट है द 10 days प्लान. व्हाट इज द 10 days प्लान गाइस? 10 days प्लान जो है दैट इज ओके, द 10 days प्लान क्या है? द 10 days प्लान इज अबाउट ए डिफरेंट स्ट्रैटेजी. ये जो 10 दिन का प्लान है, ये कुछ अलग स्ट्रैटेजी. आप क्या ये अलग स्ट्रैटेजी होगा? दिस इज विल बी this will be always about the PYQs. It will be always about the mock tests and basic revisions of class notes, or any book author you are following. और क्लास नोट्स के बेसिक रिवीजन करोगे, जिसमें स्टोरीज को रिवाइज करोगे, नॉट अबाउट द क्वेश्चंस. कुछ कुछ क्वेश्चन को ट्राई मार सकते हो एंड ऑल दैट. आप PYQs एंड मॉक टेस्ट को रीप्रैक्टिस करोगे. और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आपका एग्जाम टाइम कितना है सर? It will be from 2 p.m. to 5 p.m. isn't it? या अभी टाइमिंग इस बार कितना है? 2 p.m. to 5 है ना, या 1 to 4 क्या है? But 2 p.m. to 5 p.m. 2 से 5 है. 2 to 5 isn't it? Yes, sir. तो आप क्या करोगे आप लोग कि ये समय में हर दिन नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट 42 डेज जो आपके पास है, ये 2 to 5 में आप सोना वोना छोड़ दो. बहुत स्टूडेंट है जो आफ्टरनून नैप लेते हैं, प्लीज लीव इट. ठीक है, अभी के समय में आप ये सोना चालू करोगे तो फिर एग्जाम में भी सो जाओगे, उसमें वो लेजीनेस आता रहेगा. उससे अच्छा आप थोड़ा सा 1 घंटा पहले 10 बजे सो जाओ सुबह. इट्स ओके. ओके, जस्ट कीप योर सेल्फ इन ट्रैक. ओके, सो ये 2 p.m. to 5 p.m. में आप हर ये जो लास्ट 10 डेज है, हर एक दिन आप एक एक गेट का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे. कहां से कहां तक? फ्रॉम लेट्स से 2013 to 2023.
लास्ट 10 साल का पेपर को हर दिन आप सॉल्व करो, एक पेपर, इट्स ऑन यू, आप रैंडमली सॉल्व करो। ताकि क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, टाइम्स के हिसाब से प्लान आउट करोगे। अपने पास क्या रखोगे उसके समय में, एक स्क्रिबल पैड रखोगे, पेन रखोगे एंड योर कैलकुलेटर, दैट गेट कैलकुलेटर का यूज करोगे। ओके मैं तो आप लोग को क्लास में भी बहुत बार बोलता था कि भाई गेट कैलकुलेटर यूज करो, मुझे लगता है आप लोग यूज करते ही होंगे। सो आप जो 2 to 5 PM फॉर लास्ट 10 days always solve this grade previous year paper like you are giving the examination। आप सोचो कि भाई आप एग्जाम आज ही दे रहे हो, सो यू डू दैट, यू सॉल्व एंड यू मार्क योरसेल्फ। मतलब ऐसा इसमें मत सोचना कि मैं प्रैक्टिस कर दिया हूं तो उसमें आपका 80 नंबर आ गया, इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं, आना भी चाहिए, क्योंकि आप तो उसको रीप्रैक्टिस कर रहे हो, 1000 बार कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस कि भाई गेट में भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, एंड इट विल ऐड योर प्रिपरेशन टू ए बिट ऑफ व्हाट यू कैन से, इट विल लाइक अ मसाला टू योर प्रिपरेशन। ओके सो गेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है लास्ट 10 साल का, उसको आप हर दिन एक एक पेपर दोगे, और एक स्क्रिबल पैड अपने पास रखोगे जो गेट में देता था, वो जो कॉन्फ्रेंस पैड आता था ना 10 रुपए वाला, जो ऐसे लीफ को उठाते हैं, सो वो पैड एंड प्लस दैट गेट कैलकुलेटर विथ यू, और पूरा गेट जैसा एग्जाम दोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कीप इन बी इन अ साइलेंट रूम एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक यू आर इन एग्जामिनेशन। तो उससे क्या होगा, आप टाइम को भी जज कर पाओगे, कितना समय लग रहा है, क्या करूं मैं, कि कैसे प्लान आउट करूं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूं, to I should I start from aptitude mathematics or should I start from mining? It depends on your preparation और आपके स्टाइल के ऊपर, और वही आप जज कर पाओगे किस समय में, ये जो लास्ट 10 डेज में आप एग्जाम दोगे, उससे आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे फॉर द डी डे। आप डी डे के लिए अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई आप क्या प्लान आउट करोगे। तो डी डे के लिए आप क्या प्लान आउट करोगे, आप सोचोगे कि मैं पहले मैथमेटिक्स सॉल्व करूं, या शुड आई सॉल्व द एप्टी फर्स्ट, और हाउ टू डील विद द माइनिंग क्वेश्चन तो मेरे को कैसे सॉल्व करूं। तो ऑल दैट प्लानिंग शुड बी डन ड्यूरिंग दिस लास्ट 10 days एंड इट इज ऑन यू, आप अपने हिसाब से प्लान आउट करोगे। लेकिन यहां पर मेरा कुछ सजेशन है आपको ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कुछ सजेशन है मैं एडअप करूंगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो 30 डेज 42 डेज का लास्ट 42 डेज का जो प्लान आउट किए, उसमें हम बात किए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, टाइम डिविजन, एलोकेशन एंड द टाइम डेस्टिनेशन। तो ये जो तीनों चीज का बात किया, ये तीनों चीज के लिए 30 डेज का एक समय और 10 दिन का एक समय। तो 30 डेज में आप क्या करोगे, ओवरऑल रिविजन कंप्लीट करोगे ऑल द टॉपिक, and the next 10 days will be again the practicing of mock test, PYQs and all that, along with the previous year paper solving for last 10 days during the same time period of the examination। एग्जाम जिस समय में हो रहा है उसी समय का आप ये स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई उस समय मेरे को कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, कैसे मैं सॉल्व करूंगा, ऑल दैट यू प्लान आउट ड्यूरिंग दैट डे। ओके सो ये स्ट्रैटेजी आपका नेक्स्ट 40 डेज में होना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन यू अगेन। इफ यू हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी, यू प्लान फॉर दैट, यू डू दैट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आप अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ बेसिक एडवाइस फ्रॉम माय साइड। तो आप डी डे में क्या करोगे, द डे ऑफ एग्जामिनेशन, द डी डे में आप बहुत सारा फॉर्मूला आप रट के गए हो, लेट से बहुत सारा आप कर्व्स का इक्वेशन देख लो, यू टॉक अबाउट स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, यू टॉक अबाउट डिफरेंट हॉलेज एंड ऑल दैट इक्वेशंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड ऑल। जहां पर आपको लग रहा है कि मैं ये सब इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला रट्टा मार के गया हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, अभी एग्जाम में गए और आपको स्क्रिबल पैड मिला, okay, you start writing all the formula you have, that means आपको जितना फॉर्मूला से डर था, जैसे कर्व्स का इक्वेशन 1 2 3, कर्व्स का जो बड़ा इक्वेशन है उसको लिख सकते हो। यू राइट अबाउट द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जैसे कि एक्स एक्सिस से चेंज हुआ, वाई से चेंज हुआ या नहीं, तो मैं सिग्मा एंड टाउ एन का वैल्यू जानना चाहता हूँ, ये सब जो स्टोरी था।
तो ये इक्वेशंस जो था टाउ और सिग्मा का, ये सब स्टोरीज को मैं कैसे सॉल्व करूं एंड ऑल दैट, तो इसके लिए मैं प्लान आउट करूंगा और इसका इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा पहले जाते ही। और जिन लोगों का बेसिक दिक्कत है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री वाला दिक्कत है, ट्रिगोनोमेट्री वाला, जैसे आपको टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा वाला दिक्कत है, वो लोग भी कुछ ये सब को रट्टा मार के याद रख सकते हैं। और जो आपको अच्छा लगे कि नहीं ये चीजें मेरे को याद नहीं रहता है, आई हैव टू रिमेम्बर, आई हैव टू बी पेशेंस इन एग्जामिनेशन, सो आप पहले इसको लिख लेना। तो उससे क्या फायदा होगा, एग्जाम के समय में जब ये क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से होगा ही होगा क्वेश्चन, कर्स इक्वेशन से होगा ही होगा क्वेश्चन। तो जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, आपको हड़बड़ी नहीं होगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर मार्क, आप वो मार्क लेके आओगे। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट है, राइटिंग ऑफ द फॉर्मूलाज, राइटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑन द पैड। पैड में पहले जाते ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख देना, अपना नाम वाम लिख के ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लो, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, the second point is about writing the stories or solving the questions। क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेट से एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं जब सॉल्व करूंगा वहां पर 1 लिख दूंगा, ताकि मैं बाद में जब बैक करते करते आऊंगा या चेक करूंगा कि क्वेश्चन सही बना है नहीं, तो मैं पता चलेगा ये एक नंबर का क्वेश्चन है। तो एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया एंड ऑल दैट आई गॉट 2.3। okay, so what I got 2.3, so I will round it up twice, thrice, depending upon your choice। आप एक बार दो बार इसको राउंड अप कर दो, ताकि पता चलेगा ये एक नंबर का आंसर ये 2.3 में निकाला हूं, ताकि बाद में ये सब गोलमाल हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, you will not understand what you have written also। So you check whether the answer you have done is correct or not, 2.3। so whether it is 23, you have written 23, this will get fetch you 0। so always look for correct answer, have you made the input correct, तो उसको चेक कर लेना, और ये आप इसको गोला बना के रखो ताकि बाद में आप आके इसको चेक कर सकते हो। so that will be that is marking on the pad। ओके, स्क्रिबल पैड का नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग ऑन द पैड। पैड में आप प्रॉपर मार्किंग करोगे कि भाई साहब कि कहां पर क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर आपका क्या है। द सेकंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, लेट्स से आप आंसर बनाए हो 2.3 एंड यू गॉट अ टाइम ऑफ लेट्स से अनदर हाफ एन आवर, आपको टाइम मिला है और आप जो आंसर लगाए हो आपको लग रहा है कि ये आंसर शायद गलत है, आपको लग रहा है कि आई शुड रीचेक। okay, so what you can do, you will put a star mark on that line। ओके तो ताकि बाद में आपको लगे कि एक नंबर वाला मैं भूल गया था, इसको चेक करना है, और वहां पर तो आप इसको रिव्यू में भी डाल सकते हो क्वेश्चन में, तब उसमें भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी आप रिव्यू जैसा सेट कर सकते हो अपने स्क्रिबल पैड में, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो लेकिन ये तो मार्किंग करना ही करना है अपने स्टोरी के साथ जो आप स्क्रिबल पैड यूज कर रहे हो सॉल्व करने के समय में। ओके तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डी डे के लिए। पहला है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को पहले लिख लो, सेकेंड पॉइंट है पैड में प्रॉपर मार्किंग करोगे और जो सॉल्व। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इज अबाउट द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। so for example you have solved 1 2 3 and you got all these right, then 4 you can't solve it, let's say it is very difficult one, the fifth you have tried again, it is a very difficult one, the sixth and you are thinking that okay it may be difficult, you go to the end, you go to the 55th number question, you go to the 65th number question, you go to the 49 48, just leave that, break that chain। ओके इससे क्या होता है कि आपको फिर एक नया क्वेश्चन मिलेगा, शायद आपको क्वेश्चन आ जाए और आपको एक बेटर टाइम मिले अटेम्प्ट करने के लिए स्टोरी को। तो जब आपके पास रिपीटेड रॉन्ग क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो या समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट ब्रेक द चेन एंड गो जंप टू सम डिफरेंट क्वेश्चन, जंपिंग क्वेश्चन टू क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज जंपिंग फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंप करना
एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका D-Day के लिए. The last and the most powerful one is about the given data. बहुत लोग सोचते हैं कि स्कूल में हम जब पढ़ते थे तब टीचर बोलता था कि भाई गिवन डेटा जो लिख देगा उसको 1 मार्क दूंगा, 5 मार्क क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं किया तो गिवन डेटा खाली लिखने से भी 1 मार्क मिलता था. सो क्यों टीचर लोग इतना क्यों वैल्यू देते थे उस गिवन डेटा को? Because this is the most important parameter for your preparation or for your solving of analytical skills, or let's say you can say the solving capability, isn't it? So आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, what are the data sets there? If you write down it, if you jot down all these datas, तो इसका मतलब आपको पता हो गया कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है. आप सॉल्व क्यों नहीं किए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट डेटा सेट क्या है आपको पता है. यू गॉट अ 1 मार्क ड्यूरिंग द स्कूल डेज, इजंट इट? अभी ये गिवन डेटा का क्या काम है? क्या गेट मार्क दे देगा? नहीं भाई, मार्क तो नहीं देगा, बट क्या हेल्प करेगा आपको? इससे क्या फायदा होगा? लेट्स से इफ यू हैव रिटन द गिवन डेटा, उससे क्या होगा, बार बार आपको स्क्रीन में देख के कंफ्यूज नहीं होने का पड़ेगा. क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखोगे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. इन इंडिया देयर इज अ माइंस एंड ऑल दैट डिफरेंट गार्बेज थिंग्स विल बी एडेड इन द स्टोरी. तो उसको हम फोकस ना करके जब हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है स्ट्रेस, एक्स एक्सिस में कितना है लिखा है 20 MPa, वाई में कितना लिखा है, वाई में लिखा है 30 MPa, टाउ एक्स वाई कितना है, टाउ एक्स वाई लिखा है इट इज 5 MPa. ओके, मैं देखा कॉम्प्रेसिव है पॉजिटिव, कॉम्प्रेसिव है पॉजिटिव, टाउ भी आपका लेट्स से नेगेटिव है. ओके, क्लॉकवाइज है नेगेटिव है लेट्स से. सो मैं इस हिसाब से डेटा डाल दिया. उसके बाद क्या मांग रहा है, ओके सिग्मा एंड टाउ मांग रहा है, थीटा दिया है 30 डिग्री. अब इतना जो लिखा था वहां पर, आई हैव कम डाउन टू दीज डेटा सेट्स ओनली. तब मैं सॉल्व करना चालू करूंगा डायरेक्टली फ्रॉम दिस गिवन डेटा. मेरे को बार बार स्क्रीन देखने को नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फिर मैं स्क्रीन में ढूंढूंगा सिग्मा एक्स कहां पर है, सिग्मा वाई कहां पर है, टाउ एक्स वाई कहां पर है. नहीं, एक बार में डेटा लाओ फिर आप सॉल्व करो. डोंट गो बैक टू द स्क्रीन अगेन, क्योंकि बार बार स्क्रीन एंड कॉपी देखने से फैटिगी शुरू होगा. क्योंकि आंख में बार बार आप प्रेशर डालोगे टू ए स्क्रीन टू ए नोटबुक, टू ए स्क्रीन टू ए नोटबुक. तो बार बार ये आप जो उसको जंप कर रहे हो एक जगह से दूसरा, उसे ना करके सीधे सीधा आप एक जगह पे सॉल्व करोगे तो फैटिगी कम होगा और कंसंट्रेशन एंड फोकस विल बी ग्रेट. ओके, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है गिवन डेटा. ओके, तो डेटा हमारे लिए गॉड है और वही गॉड के साथ हमको सॉल्व करना है. तो हमारे पास D-Day का स्टोरी क्या क्या है भाई? क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो क्या दिया है, मार्क कर लो कॉपी में एंड आंसर को मार्क कर लो. भाई सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर आपको डिफिकल्ट आया कुछ तो फिर आप आगे जंप कर जाओ. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में आप गिवन डेटा को देख लो कि गिवन डेटा क्या दिया है. आप देखो गेट एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज मैं देख लिया हूं, जितना ज्यादा लिखता है उतना इजी क्वेश्चन है, जितना कम लिखता है वो उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है. तो आप इजी क्वेश्चंस में ज्यादा हम पढ़ते नहीं है. इस साल तो आपको IISc बेंगलुरु शायद आपका चेयरमैन है, तो आप देखो इस बार आपको लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे बट दे विल बी नॉट ट्रिकियर. ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, दिस विल बी लेंथियर. प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम, इट विल टेक टाइम, एक समय आपसे लेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होगा. बस आपका पेशेंस मांगता है. तो कैसे पेशेंस आएगा? आप क्वेश्चन को पढ़े, उसका गिवन डेटा को लिखे, उसके बाद सॉल्व किए. बार बार कंप्रहेंशन पढ़ोगे सो इट विल टेक योर टाइम एंड अब सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस ईयर एग्जामिनेशन विल हैव लेंथी पेपर डेफिनेटली. ओके, IISc बैंगलोर का ये फितरत है, हर जितने बार वो आए हैं उतने बार आप देखो पैटर्न में वो चेंजेस लाए हैं और लेंथी पेपर्स लेके आए हैं. ऐसा नहीं कि वो खुद क्वेश्चन बनाते हैं, बट दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ सेटिंग अ पेपर. So I don't know, maybe this will happen with you guys, that paper will be a bit lengthier, but it will be not difficult one to judge. Okay, difficult nahi rahega, it will be definitely moderate to difficult, and you guys will see lengthier paper. थोड़ा सा questions आपको बड़े-बड़े देखने को मिलेंगे. Okay, so this is our strategy for GATE examination for next 42 days, and this should be our D-Day plan. कि D-Day प्लान में आप कैसे फॉर्मूलाज राइट करोगे, कैसे मार्किंग करोगे, कैसे जंप करोगे क्वेश्चंस में, एंड द गिवन डेटा, एंड द रेस्ट शुड बी ऑन द नेचर, ऑन द गॉड इटसेल्फ.
ओके तो यहाँ पर गॉड मतलब आपका कर्मा, इट्स नॉट अबाउट कोई भगवान का बात बोल रहा हूँ, इट इज अबाउट ऑल योर कर्मा. सो कर्मा मीन्स क्या है भाई साहब? कर्मा मीन्स योर कंसिस्टेंसी, योर हार्ड वर्क, योर स्मार्ट वर्क, योर इन्वॉल्वमेंट इन द स्टोरी. ठीक है, आपका स्टोरी में प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है, 10 घंटा 15 घंटा दे रहे हो, यू आर जस्ट क्रेविंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, मेरे को करना ही है. तो भाई ये जो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि भाई कायनात जुट जाएगा आपको मिलाने के लिए, द सेम विल हैपन विथ यू एंड डेफिनेटली विल सक्सीड, एंड दैट इज कॉल्ड कर्मा और गॉड. सो मेरा रिक्वेस्ट है, कर्मा को डरो, कर्मा नहीं करोगे यू विल नॉट गेट योर द थिंग दैट यू आर विशिंग फॉर. और आप ऐसा मत सोचो कि गेट एग्जामिनेशन बहुत इजी है, मैं तो पार कर दूंगा, ऐसा बात नहीं है. इट इज ऑलवेज अबाउट द गाय who is consistent, the guy who is hard working. Okay, so भाई वो consistent बंदे के लिए ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गेट ऐसा ही एक गर्लफ्रेंड है जिसको चाहिए हार्ड वर्किंग बंदा. Okay, so this is how the D day should be. Now, I want to share some of the important topics for GATE examination that you must should not avoid. But yes, आपको avoid करना था क्योंकि आपको नहीं आया या आपको लगा कि नहीं ये टॉपिक नहीं होगा, कुछ दूसरा टॉपिक मेरे से अच्छा हो जाएगा. So then you can avoid that. So I am giving some of idea about what are the important topic for GATE examination, not to be exclusively followed. Okay, exclusively उसी को ही पढ़ के जा रहे हो, then it will be dangerous. I am not talking about that. I am saying that what are the important topics that should not be avoided and they should be practiced more and more to get a better rank. Okay, so the next story is about the GATE topics. गेट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग को देखना पड़ेगा. वी नीड टू टॉक अबाउट देम. तो देखो गेट एग्जामिनेशन 2024 एंड इट इज बाय आईआईसी बेंगलुरु. आईआईसी बेंगलुरु ये आपके लिए टॉपिक लेके आया है. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, मैं इसमें बात करूंगा आपके साथ. ओके, लेट्स ब्रिंग इट बैक. ओके, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फॉलो अप. क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देखना है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखोगे तो लीनियर अलजेब्रा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू थिंक ऑफ. ठीक है, तो इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको देखना है. वन सेकेंड गाइस. Okay, so let me share here directly so that we can mark it up there. Oh, 1 second, guys. Okay, so guys, what are the important topic for your examination? You just remember these things will be very very important for your preparation. Yeah, let's start with your mathematics. Okay, मैथमेटिक्स में आप देखोगे दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टॉपिक. ये टॉपिक से गेट क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है इसका जो क्वेश्चन होता है. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट योर द कैलकुलस में आप देखोगे. इफ यू आर रेडी टू गो विद द कैलकुलस, देन कैलकुलस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, and then the L'Hospital rule. Okay, and this the gradient, divergence and curl in the vector calculus if you are studying it. Okay, आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए है. Okay, the next important topic, please don't write anything on this board. Okay, the next important topic is your probability and stats. Okay, बहुत ही important story है.
इसी को मिस नहीं करना चाहिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज योर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। देन कम्स अप दिस न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड्स आप पढ़ रहे हो और डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हो, दी स्टोरी विल एड अप टू द कॉन्सेप्ट। लेकिन मिनिमम सब्जेक्ट्स क्या क्लियर होना चाहिए? लीनियर अलजेब्रा क्लियर होना चाहिए, कैलकुलस का जितना लाइन अप किया हूं यहाँ पर, वेक्टर कैलकुलस का बेसिक, एंड योर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। इतना टॉपिक को तो मिनिमम आपको देख के जाना है, और ये दो टॉपिक आप छोड़ सकते हो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। ओके, सो आई एम गोइंग फॉर द इंपॉर्टेंट वंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं। ओके, द नेक्स्ट वन इज अबाउट, okay, let me find it. Okay, the next one is the section 2. The section 2, if you see, what are the important topics here? If you go through the story, then the most important story will be these two, this drilling, blasting, and this story. If you go to surveying, the important topics will be the leveling, the errors and adjustment, the basics of contouring, the photogrammetry. These are the important topics in your गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लेबल और कर्व्स आपका एक टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक आपका टॉपिक है द ट्रायंगुलेशन में, दैट इज कॉम्पास। कॉम्पास एक टॉपिक है, कॉम्पास में कैसे आप एंगल्स निकालते हो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहां पर भी आप देख सकते हो। तो भाई सर्वे में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लेबलिंग देख लो, आप काउंटरिंग देख लो, एरर्स एडजस्टमेंट देख लो, फोटोग्रामेट्री, यू टॉक अबाउट द कॉम्पास एंड ऑल दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इटसेल्फ है टॉपिक, आपको इज ऑप्शनल। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अच्छे प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा को फोर्स डायग्राम एंड ऑल दैट में दिक्कत आता है, तो दिस इज ऑप्शनल स्टोरी, डिपेंड ऑन यू गाइज। ओके, तो लेकिन इतना टॉपिक तो सेक्शन 2 में आपको क्लियर करना है, माइंड डेवलपमेंट एंड माइंड सर्वे का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू आर डूइंग माइंड सर्वे इन ऑल टुगेदर देन इट विल बी ग्रेट। पटौदी सर पढ़ाए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में ही आया होगा। then again it will be the very important story, the development and the survey. Okay, the next one is about your रॉक मैकेनिक्स एंड अदर्स। सो देखो भाई, रॉक मैकेनिक्स में मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही इसी से ही क्वेश्चन आता है। So there is no important topic in rock mechanics, it is all important. Okay, rock mechanics and ground control itself is a very important, इसको छोड़ना नहीं भाई साहब, एटलीस्ट ट्राई आउट करो सॉल्व करने का। 15 मार्क छूट जाता है तो मतलब 15% ऑफ द सिलेबस। आप सोच लो कि भाई मैथमेटिक्स से भी ज्यादा वेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। कम टॉपिक है, मैथमेटिक्स में तो 6 टॉपिक है, इसमें भाई कुछ नहीं, 2 टॉपिक में खत्म है, लेकिन इसको आपको देखना है। ओके, सो द रॉक मैकेनिक्स को छूटना नहीं चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज माइन मेथड एंड मशीनरी। देखो एज ए माइनिंग इंजीनियर आप इसमें कुछ भी मत छोड़ना, so it is also very important story। इसमें तो आपको 20 मार्क मिलते हैं, so 20% of the syllabus, so nothing to choose, all things are very important। okay, इसमें भी सब कुछ important है आपके लिए, क्योंकि यही तो आपको क्वालिफाई करने में ही हेल्प करेगा। The next one is about this surface environment। सरफेस एनवायरनमेंट में आप देखो बहुत सारा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आजकल पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है, सो वी नेवर नो, हम लोग शायद उसको सॉल्व कर पाए या ना कर पाए, लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत ही वास्ट स्टोरी है। तो बेसिक्स में आप देखोगे एनवायरनमेंट में एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन हो जाए, नॉइज पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ना ही नहीं। ओके, और आप वेंटिलेशन देखोगे, वेंटिलेशन में स्पेसिफिकली मैकेनिक्स ऑफ एयर फ्लो, कैसे फ्लो कर रहा है, रिनॉल्ड्स नंबर, आपका लामिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, नेचुरल मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है, जिसमें आप बात करते हो वेंटिलेशन सर्वे का, वेंटिलेशन नेटवर्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जिसमें रेगुलेटर, बूस्टर, इन सब के बारे में आप बात करते हो। हीट लोड का बेसिक्स आप जैसे सोर्सेस पढ़ के जा सकते हो, और अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर देख सकते हो, जिसमें आप देखते हो क्या, आपका जैसे साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सिग्मा हीट, ऑल दैट कॉन्सेप्ट्स, आप उसको भी कैरी आउट कर सकते हो, दैट इज स्टिल ऑप्शनल। बहुत लोग को हीट में प्रॉब्लम आता है तो यू कैन लीव इट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, बट बाकी का चीज तो करना ही है।
और अंडरग्राउंड हजार्ड को तो डेफिनेटली करना है पूरा का पूरा, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल टॉपिक है, रट्टा मार के जाओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो डाउट। ओके, और लेजिस्लेशन के लिए टेंशन मत लेना, जितना ही क्लास में दिए हो उतना बेसिक्स में करके जाओ और ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि गेट का लेजिस्लेशन जो है बहुत ही स्क्वीज टॉपिक है। खाली नाम लेजिस्लेशन लिख देना बहुत ही इजी बात है, लेकिन उसमें चीजें बहुत सारे हैं। सो फॉर गेट एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज यू आर नॉट ए प्रैक्टिसिंग माइनिंग इंजीनियर, यू आर जस्ट एस्पेरेंट। ओके, सो आपको उतना टेंशन नहीं लेने का। अब दूसरे चीज को, जैसे गैस हो गया, आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, आपका कार्ड डायग्राम हो गया, ये सब में आप ज्यादा इंपोर्टेंस दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, so the next topic of discussion is about the section 6। सेक्शन 6 में आप देखो मिनरल, सेक्शन 6 एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक में चूज करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें छोटे छोटे टॉपिक 3 ठो है, और ये तीनों टॉपिक को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि हम एक अच्छा मार्क्स ले आ पाए। लेकिन स्टिल आप चूज करने बोलोगे तो मैं चूज भी कर लूंगा कि कौन सा इंपोर्टेंट स्टोरी है। आप देखोगे मिनरल इकोनॉमिक्स को पूरा का पूरा चूज करूंगा, इसमें आपको हर साल 5 मार्क क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, सॉल्व करियो, उसमें 5 से 3 तो लेके आओगे। ठीक है, सो डोंट लीव दिस टॉपिक, इसको सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक सिंगल टॉपिक है। और माइंड प्लानिंग देखोगे, माइंड प्लानिंग बहुत ही इजी स्टोरी है, इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये है द मील ग्रेड कट ऑफ ग्रेड कॉन्सेप्ट, एंड इसी को ही आपको थोड़ा टाइम देना है, बार बार रिकॉर्डेड सेशंस देख लेना, और कोई डाउट्स है तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में तो क्लियर करूंगा ही करूंगा। और जैसे हॉल रोड का डिजाइन हो गया, सिलेक्शन ऑफ माइनिंग सिस्टम हो गया, ये सब तो हम ओपन कास्ट अंडरग्राउंड के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस माइनिंग सिस्टम हो गया और इंटरमिटेंट माइनिंग सिस्टम और ऑल दैट के बारे में हम लोग बात किए हैं। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द सिस्टम। तो देखो भाई, ये सिस्टम इंजीनियरिंग भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, लाइक दैट ऑफ माइन इकोनॉमिक्स और मिनरल इकोनॉमिक्स, बिकॉज दीज टू आर what you can say, there's a compulsion for gate examination, इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड सिस्टम, these are not a part of mining industry only, these are part of the whole engineering industry। ओके, तो इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा तो भाई यही दोनों है, इकोनॉमिक्स एंड द पॉट सीपीएम, इजंट इट। तो भाई साहब, आपको रिलायबिलिटी हो गया, आपको मेंटेनेबिलिटी हो गया, यू टॉक अबाउट नेटवर्क एनालिसिस एंड ऑल, क्यूइंग थ्योरी, ये सबको आपको अच्छे से करके जाना है, और मिनरल इकोनॉमिक्स और सिस्टम को छोड़ना नहीं है। माइन प्लानिंग का कट ऑफ ग्रेड, मील ग्रेड, ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, और तो बाकी वाला चीजें सब इजी है, एंड स्टैटिस्टिकल जो स्टोरीज है थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से मैं चूज करता हूँ इंपोर्टेंट स्टोरीज। लेकिन बहुत लोग को लगता होगा कि सर इसमें तो पूरा का पूरा सिलेबस का 60-70% आ गया। डेफिनेटली आएगा ही सर, क्योंकि आप सोचो, आपको 30 मार्क्स रखना है टू क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स रखना है, सो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर 60 मार्क्स एटलीस्ट टू गेट ए 30 मार्क्स, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है भाई, यहाँ पर 50% के ऊपर मतलब सही बंदा है। तो आपका प्रिपरेशन 60% क्वेश्चंस में है, तो डेफिनेटली आपको 30 मार्क मिलेगा, लेकिन आप 100 का 100 मार्क्स का प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 50, isn't it? 50% का गेम है। ओके, तो 50% के ऊपर मार्क्स लाने के लिए, और 50 मार्क्स के ऊपर लाने के लिए आपको उस हिसाब से रीप्लान करना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन को। तो मेरा रिक्वेस्ट सबको यही रहेगा कि भाई, जो चीज आप नहीं पढ़े हो अभी उसको पढ़ना चालू मत करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। आप जो पढ़े हुए हो, जो टॉपिक्स आप कवर किए हो, या जो लगता है इजी है मैं कर लूंगा, उस सब टॉपिक को रीप्रैक्टिस करते रहो, ताकि उसमें एक 100% मार्क लेके आओगे। नहीं तो 70% तो लेके आओगे ना भाई, तो उतना भी हमारे लिए काफी रहेगा। ठीक है, सो इसी के साथ मैं चूज किया टॉपिक, आप लोग को बताया। And the next important story here is about the plan. Okay. सो हम लोग जो प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे एंड ऑल दैट, ये बेसिक स्टोरी रहा। उसमें कुछ कुछ चीजें ओके कोई सर पूछ रहे हैं तो मैं भी इसके लिए बात करता हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स में अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोग के साथ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर रॉक मैकेनिक्स में बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई
कंप्रेसिव इज नेगेटिव, टेंसाइल इज पॉजिटिव, एंड उस हिसाब से उसका आंसर भी हमारा 50 आ रहा है तो उसका -50 आ रहा है। तो कौन सा सही है? क्या आप सही पढ़ाए हैं? क्या ये सही हो रहा है हमारे साथ? क्या हम गलत पढ़ लिए हैं? तो मैं बार बार लोगों को बोला हूं कि भाई रॉक मैकेनिक्स मतलब रॉक का स्ट्रेंथ, तो भाई रॉक का स्ट्रेंथ मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रॉक का ज्यादा रहता है। तो इसीलिए जनरली माइनिंग इंजीनियर्स हम क्या लेते हैं, कंप्रेसिव को पॉजिटिव एंड टेंसाइल को नेगेटिव लेके पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ते हैं। इफ यू हैव स्टिल अ डाउट, यू कैन गो थ्रू इंट्रोडक्शन टू रॉक मैकेनिक्स, इंडियन ऑथर बाय डी देव सर का बुक आप देख सकते हो। वहां पर भी वो जिक्र किए हैं इसके बारे में और बताए हैं। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो उनके ऊपर विश्वास एटलीस्ट कर लो, क्योंकि वही आपका गेट का रॉक मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन मान लो क्वेश्चन में लिख दिया, गेट का क्वेश्चन में लिख दिया कि सर ये हो गया और ब्रैकेट में लिखा कंप्रेसिव इज नेगेटिव, टेंसाइल इज पॉजिटिव। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला आप पढ़े हो कंप्रेसिव को नेगेटिव ले लेना और टेंसाइल को पॉजिटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी द सेम एंड द सेम स्टोरी यू विल गेट। बट बात है कि कुछ भी नहीं लिखा, देन यू जस्ट फॉलो इट, यू जस्ट स्टिक योरसेल्फ टू दैट। ओके, नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जैसे रॉक मैकेनिक्स जो सत्य सर का बुक है उसमें भी बहुत सारा चीज जो कंप्रेसिव को नेगेटिव और टेंसाइल को पॉजिटिव लिया है। कोई टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो, मैं जैसे बोला आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलो, दैट विल बी ग्रेट जर्नी टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये रॉक मैकेनिक्स का ये नोटेशंस में टेंशन मत लो, जो क्लासेस में बताया वही नोटेशंस को लेके चलो। Okay, so with this, let's complete our session for this the preparation strategy for GATE 2024. और मैं आप लोग से मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में ऑन मंडे, और स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स एंड बात करेंगे जो जो डाउट्स आप लोग का है, जो जो टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट हो गया, आपका न्यूमेरिकल्स हो गया, ऑल दैट स्टोरीज को हम डिस्कस करते रहेंगे एक एक दिन छोड़ के। कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखो, डेफिनेटली चीजें आपका बनेगा। सर जी सर बोलिए। सर एक प्रॉब्लम ये दिक्कत है कि अगर 4-5 मतलब डेसिमल के बाद 4-5 आ जाएगा, उसको राउंड अप करना है या क्या करना है, किस टाइप पे लिखना है, वो दिक्कत होता है कि डेसिमल 3 डिजिट बताता है, तो हम राउंड अप करेंगे तो कभी कभी उल्टा पुल्टा, वो सब थोड़ा मतलब एम्फासिस कीजिए उसके ऊपर थोड़ा। ओके ओके ओके, तो ये कैलकुलेशन वाला पॉइंट है। जैसे गेट में क्या करता है, कुछ भी क्वेश्चंस लिखता है ना, वहां पर नीचे लिख देता है राउंड ऑफ टू लेट्स से 2 डेसिमल, ऐसा लिख दिया। गेट खुद लिख दिया और लिखता भी है आजकल, ठीक है। राउंड अप बहुत सारे तरीका है ना सर, कौन सा तरीके में करना है यहाँ पर, उसी वो सब कंफ्यूजन होता है। मतलब बहुत सारा तरीका है, मतलब जैसे 9.4837 है, तो राउंड 5 टू से 2 ज्यादा डेसिमल होगा तो क्या तो होगा? 5 से वो ज्यादा होगा तो उसको बढ़ा देंगे, या 5 से कम, ये एक तरीका हो गया। फिर और और इवन तरीका होता है, 5 से ऊपर और होगा तो ये करेंगे, इवन होगा तो ये करेंगे, वो सब भी 2-3 तरीका है ना, वो याद नहीं, 12 में पढ़े थे वो सब। जी जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसे बोलते हैं, हाँ ऐसे कुछ होता ठीक है। है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आप एक ही तरीका को फॉलो करोगे कि भाई मान लो आपका मतलब 2 डेसिमल्स देना है, इसके बाद वाला का वैल्यू 5 से कम है, तो उसको कुछ चेंज मत करो, 9.48 विल बी योर आंसर। ओके, लेकिन मान लो 9.4867 है, सो आपको 2 डेसिमल जाना है, ये 5 से ज्यादा है, तो इसमें आप +1 ऐड कर दोगे, 9.49 लेके चलोगे। ओके, तो गेट आपको मुझे नहीं लगता 2 डेसिमल में भी उतना टेंशन देगा इफ योर आंसर इज विद इन द लिमिट। सर कुछ में कुछ बोलिए बोलिए। एग्जैक्टली अगर 5 रहेगा तो सर एग्जैक्टली 5 रहेगा भी तो कर लेना भाई, 5 या 5 से ऊपर। सर और एक क्वेश्चन था, मान लिया नंबर ऑफ टॉप्स निकल रहा है मेरा 9.0003 निकल रहा है, तो क्या नंबर ऑफ टब्स? मान लिए 9.0003 निकल रहा है क्योंकि 3 डेसिमल के अंदर आ रहा है, और एक और मैं 3 डेसिमल को छोड़ के 3 आ रहा है, तो वहां नंबर ऑफ टॉप्स 10 लूंगा या 9 लूंगा, और एक में ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक में 003 आ रहा है मान लीजिए। ओके ओके, तो देखो गेट का वे में समझा रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चंस के पॉइंट में नहीं, गेट का पॉइंट ऑफ व्यू में गेट क्या सोचता है। जब भी कोई गेट का क्वेश्चन बनता है भाई, उसमें क्या होता है ना कि मतलब मल्टीपल वे में उसको सॉल्व किया जाता है, तभी जाके रेंज निकलता है। लेट से मेरे को देना है नॉट, अभी निकलता है लेट से,
So 9 tubs will be the answer. So 9 to 9 will be your range for GATE examination. लेकिन आपका मान लीजिए वैल्यू 9.003 आ गया, तो उस हिसाब से हमको टब्स कितना चाहिए होगा? Will be 10 डेफिनेटली। मेरे को टारगेट फिलअप करना है और मेरे को बोला गया कि 1000 टन करना है, तो उस हिसाब से मेरे को 9.003 टब्स चाहिए। तो इसका मतलब 9 टब में तो होगा नहीं ना, 9 टब से थोड़ा सा ज्यादा भी हो, लेकिन हमको एक एक्स्ट्रा टब चाहिए, तो हमको 10 टब्स चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूं, गेट कभी ऐसे फंसने वाला चीज बनाएगा ही नहीं। आप एक को गेट का एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2016 में शायद एक क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ एसडीएल्स पूछा था एक क्वेश्चन में। ओके, नंबर ऑफ एसडीएल्स पूछा था, एक स्टूडेंट मेरा था शायद 2017 या 18, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग अबाउट इट। तो वहां पर क्या एक स्टूडेंट का आया था 1.07। ओके, तो उनको लगा कि 1.07 आ गया, तो इसका मतलब क्या दो टब क्यों, दो एसडीएल्स क्यों लगाऊंगा, इट शुड बी 2, सो इट शुड बी 1, तो 1 लगा के आगे, कोई दिक्कत नहीं। वो भी उनको लगा कि 0.7 का क्या ही गेम है। लेकिन जब आंसर निकला और हम लोग सॉल्व किए, दैट आंसर कम अप 1.48 or something like that. That means he has solved it in a wrong manner and thought differently. Whereas if he had thought that कि भाई ठीक है 1.07 मतलब ये 1 हो सकता है मे बी, और आई शुड रीचेक माय आंसर। तो मेरा पर्सनल व्यू है, जब भी इस प्रकार का नंबर ऑफ टब्स, नंबर ऑफ एसडीएल्स निकलता है, प्लीज रीचेक योर आंसर। कहीं पर आप गलत किए हो क्या, थोड़ा सा चेक कर लो, क्योंकि ये 8.98 भी हो सकता है, इसका मतलब 9 टब है, isn't it? 9.003, इसका मतलब इट इज वेरी वेरी नियर टू 9। इसका मतलब कहीं पर हम डेसिमल में या कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, जिसके लिए 9 से आप पूरा क्लियर ज्यादा आया या क्लियर कम आया, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ही ज्यादा आया है, तो क्लियर ज्यादा नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि गेट इस प्रकार का कभी क्वेश्चन देगा नहीं, आपको थोड़ा आपका आंसर रीचेक करना चाहिए कि भाई ये आंसर में सही आंसर है या नहीं, क्योंकि गेट अभी ऐसा फंसाने वाला चीज नहीं बनाएगा, वो कॉन्सेप्ट में फंसाएगा, नॉट इन द कैलकुलेशंस। ओके, तो सिंगल जीरो वाला मेरा एक आया था सर, उसी टाइप का, मतलब हाँ शायद वही बोल रहा हूँ। तो क्लास में या कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन बुक्स में हो सकता है, लेकिन गेट में नहीं होगा, आई कैन गारंटी यू। क्योंकि भाई जब क्वेश्चंस बनता है, जब रिसर्चर्स बनाते हैं क्वेश्चंस, प्रोफेसर्स वो क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम उनके स्टूडेंट को देते हैं सॉल्व करने के लिए, मल्टीपल वेज में सॉल्व करने के लिए, तब जाके रेंज निकलता है। ठीक है, हमारे जो मेरिट प्लस का जो मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट, उसमें गलती हो सकता है, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा इन डिटेल रिसर्च नहीं करते ऑन द आंसर। लेकिन गेट आंसर के लिए बहुत पर्टिकुलर है, क्वेश्चन गलत हो जाए, आंसर उसका सही होगा, क्योंकि भाई उसको मतलब आजकल क्या हो गया, चैलेंज एंड ऑल दैट हो गया है ना, तो उसको तो उस हिसाब से प्लान आउट करना है। तो आप टेंशन मत लेना, जब भी ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप रीसॉल्व करके देख लो, सच में आ रहा है क्या, सच में आ रहा है तो आपका कॉन्सेंस को फॉलो करना। 9.003 आया तो मोर देन 1, सो मोर देन टब्स आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो टारगेट फिलअप नहीं होगा, तो आपको 10 टब्स लाना पड़ेगा। लेकिन गेट ऐसा फंसाएगा नहीं, मेरा एक पर्सनल व्यू है। ओके, तो होता है ऐसा, तो सर दैट्स व्हाई पूछ लिया मैंने। हाँ हो सकता है, लेकिन गेट फंसाएगा नहीं, आई एम डैम श्योर। ओके, सर उसमें भी गेट आंसर ऐसा नहीं करेगा सर। वो जैसा 3 है या 07 समथिंग आया था, उसमें भी 9.07 से कुछ आया था। ओके प्रीवियस ओके, क्वेश्चन नहीं है उसका, वो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है वो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं हुआ होगा कभी भी, शायद, तब मैं, यस सर। चेक कीजिएगा। हेलो सर। ओके विजय जी बोलिए, बोलिए विजय जी। सर जैसे कैलकुलेट करते हैं गेट कैलकुलेट से, सर ऐसे मतलब 5.23567 ऐसे थीटा के वैल्यू आ रहा है, और किसी से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो सर डायरेक्ट सर मास्टर से रिटर्न करके तो सर करते हैं, नहीं, तो सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बहुत टाइम इसमें गलती हो जाता है, बहुत बड़ा वैल्यू में थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी मान लीजिए आप कुछ टैन थीटा निकाल रहे हो या कुछ साइन थीटा निकाल रहे हो, लेट्स से 1/10, और थीटा का वैल्यू आप निकाले 5.712368, ऐसा कुछ वैल्यू आप निकाले, बहुत ही बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो आप क्या करना, तो आप इसको क्वेश्चन में जो आंसर पूछ रहा है 3 डेसिमल या 2 डेसिमल तक पूछा है, मान लो 2 डेसिमल तक गेट पूछा है, तो आप क्या करना, 3 डेसिमल तक आपका मिडिल वाला वैल्यू को रखना, मतलब ये तो आपका एंड रिजल्ट नहीं है ना, तो इसको आप 3 डेसिमल तक रखना, 5.725 लेट्स से। तो आप 3 डेसिमल तक रखे, फिर सॉल्व किए,
तब जाके करोगे तो उसमें पर्टिकुलरली आपका आंसर सही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पाई का वैल्यू भी वही करते हैं। गेट कैलकुलेटर में पाई का वैल्यू दिया है भाई, उस पाई को सीधा यूज करो, नॉट दैट 3.94। 3.94 इज नॉट अ पाई वैल्यू, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.94 थोड़ी ना है। ओके, गेट कैलकुलेटर में देखो साइड में ऐसे नीचे है, यहाँ पर पाई, तो भाई पाई का यूज करना जब पाई सॉल्व करोगे। तो गेट इसीलिए तो दिया है पाई, आप 3.14 लोगे तो शायद आपका आंसर मैच ना करे, लेकिन कोई गारंटी ऐसा नहीं कि मैच नहीं करेगा, हो सकता है मैच भी कर जाए, बट ऑन अ सेफ साइड भाई पाई का आप यूज करो। और डेटा को हर टाइम 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके ही उसका यूज करो, नॉट लाइक दिस। ये तो लेजी मेथड हो गया ना भाई, जो आया उसी को लेके सॉल्व कर दिया। दिस इज नॉट अ सर राइट थिंग टू डू। सर ऐसे में तो सर हर बार मतलब जो भी मतलब सॉल्व करेंगे, जैसे बहुत सारा प्रोसेस है, तो सर हर बार उसका 3 डेसिमल लिखना पड़ेगा सर। जरूर जरूर सर, ऐसा करने से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा सर। ऐसा नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट मार देने से क्या होगा, क्या किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, आप में सब कंफ्यूजन भर जाएगा और एंड में पता भी नहीं चलेगा आप क्या सॉल्व किए। ठीक सर है, जैसे स्टेप्स बनाओ और स्टेप्स बना के सॉल्व करो। सर जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सर डायरेक्ट जो आंसर आया सर उसको फिर मास्टर सेव करके फिर रिटर्न करके सॉल्व डायरेक्ट करते जाते हैं। तो सर थोड़ा सा हम सोचे कि आंसर रेंज में मैच नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप स्टेप वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे आप कॉलेज में सेमेस्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही प्रैक्टिस करो। सो वैसे ही करने से, स्टेप वाइज करने से ही आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि बार बार आप मतलब ऊपर ऊपर डेटा के ऊपर जाओगे तो शायद वो मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो जाए इधर उधर, सब आंसर गलत है। सर वो एक प्रीवियस क्वेश्चन 9.038 था सर उसका आंसर, लाइक उसके जो निकाले हैं नंबर ऑफ इम्पेलर्स, उसमें 9.038 था। मतलब गेट का आंसर था। गेट का आंसर मतलब मेरिट प्लस का ही देख रहा हूँ आंसर में 9.3, गेट का आंसर 10 था उसमें। ओके ओके, तो आपको देखो वहां पर आप, मैं तो वही बोला ना कि 9.038 आया, तो इसका मतलब क्या है, आपको फिर से रीट्राई करना है कि भाई कहीं पर मैं गलत कर दिया, ये फिर भी सही। वही सेम है। सो देन ऑब्वियसली आपको 10 विल बी द आंसर, ये इजंट सर, इट? नंबर ऑफ इम्पेलर में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा मतलब कहीं भी। जरूर जरूर सर, देखिए जहां पर एक होल चीज चाहिए, जैसे हाँ। होल चीज मतलब आपको टब्स चाहिए भाई, तो 9.3 मतलब क्या, आप 9.3 मतलब दूसरे का 30% लेके टब्स यूज कर सकते हो क्या? लॉजिकल सोचो, जैसे कि एसडीएल्स 1.58 एसडीएल्स चाहिए, वो कैसे हो सकता है? सो दैट दिस विल राउंड अप टू 2, isn't it? So वैसे ही इम्पेलर्स, इम्पेलर का तो छोटा एक इम्पेलर नहीं लगा सकते ना, इम्पेलर शुड बी ऑफ सेम साइज, मल्टी स्टेज एक पंप में, तो उस हिसाब से 9.038 आया, मतलब 10 इम्पेलर्स ही चाहिए आपको। यस सर, यस ओके, सर। तो उसको थोड़ा सा आपको मतलब लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, सो अकॉर्डिंगली आपको राउंड अप करते जाना है। पहले रीचेक कर देना आपके हिसाब से, मतलब पहले रीचेक करके देखना हाँ, रीचेक कर लो कि 9.00253 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, तो इट मींस समवेयर देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक मे बी। यस उसको सर। रीचेक करो, फिर भी आया, देन टेक द चांस बाय द कॉन्सेंस। मतलब आपको क्या लग रहा है, 9.038 है मतलब 9 इंपलर में होगा नहीं, इट शुड बी 10। यस सर। ओके, तब आप 10 मार्क क्या होगे, क्योंकि एक लेकिन जीरो रीचेक कर रहता है तो लेना। कंफ्यूजन हो जाता है सर, एक जीरो रहता है ना तो लगता हाँ, है मैं समझ कि गया। लाइक इग्नोर जी मार जी, सकते हैं लाइक नहीं दैट। वो तो ह्यूमन माइंड है ना, लॉजिकली सोचता है कि चलो यार 9 में ही चला लेते हैं, जो सच में रियल में भी वही होता है। मतलब 9.038 मतलब ठीक है, 9 में ही एडजस्ट करेंगे आसपास वाला क्वांटिटी में। यस सर, यस सर। ये 2000 रिसेंट का क्वेश्चन है, 2022 का समथिंग इसके कर रहा। ओके 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 यस। ओके। सो गाइज, ये बेसिक स्टोरी हम लोग बात की कि कैसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या प्लान आउट रहेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेशेंस के साथ एग्जामिनेशन दो, डेफिनेटली अच्छा होगा। और हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस में मिलेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड विल मीट इन द डाउट सेशंस। टेक केयर गाइज। थैंक यू सर।